کشمیر جوائنٹ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کامیاب، معاہدے پر دستخط کے بعد ہڑتال ختم کر دی گئی۔ دونوں فریقین نے مثبت کردار ادا کیا۔ دشمن خصوصاً بھارت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ کشمیر میں خون ریزی ہو۔ آج کا یہ کامیاب نتیجہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اتحاد، تحمل اور بات چیت سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور۔ دونوں کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے لیگل ایکشن کمیٹی قائم۔ لیگل ایکشن کمیٹی ہر 15 روز بعد بیٹھے گی۔ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ دونوں اطراف سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت افسوس ہے۔ رانا ثناء اللہ، امیر مقام، پرویز اشرف اور دیگر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم، امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوشائند ہے۔ سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کشمیری بھائی افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ آزاد کشمیر میں عوام آزادی اور جمہوریت کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کے حقوق اور ترقی کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ اس کے برعکس بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا واحد راستہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے وابستہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ۔ حماس نے ثالثوں کو اپنا جواب جمع کرا دیا۔ حماس کا امریکی صدر کے امن منصوبے کے تحت تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا انتظام فلسطینی ٹیکنوکریٹس کے حوالے کرنے پر اتفاق عرب میڈیا۔ حماس پائیدار امن کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کرے تاکہ یرغمالیوں کے بحفاظت اور جلد رہائی ممکن ہو سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ حماس کے جواب پر قطر، مصر اور UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا خیر مقدم۔ ہم غزہ جنگ بندی کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی کھڑکی کھولی ہے۔ امن کی نئی راہ کو بند نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پاکستان دوست ممالک سے مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جنگ بندی پیش رفت کا خیر مقدم۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکیے، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ فلسطینی نائب وزیر خارجہ کا فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ برادر ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹجک شراکت داری معاہدے پر فخر ہے۔ اس اقدام سے اسرائیل کمزور ہوگا۔ ڈاکٹر عمر کا پاکستان ٹی وی کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں اظہار خیال۔ پارلیمنٹ لاجز کا نیا بلاک 13 سال بعد تعمیر کے مرحلے میں داخل۔ محسن نقوی کی ہدایت پر منصوبے کی تکمیل کے لیے کام تیز کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ اور طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کے زیر تعمیر بلاک کا دورہ۔ 4 ماہ میں بلاک مکمل کرنے کا ہدف، فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ 104 رہائشی یونٹس پر مشتمل بلاک، پارلیمنٹیرینز کو سہولت میسر آئے گی۔ قانونی پیچیدگیوں اور کانٹریکٹرز کی غفلت نے منصوبے کو سالوں تاخیر کا شکار بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا خصوصی افراد کے گھروں تک پہنچنے اور مدد کا طریقہ کار وضع کرنے کا حکم۔ صوبے بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ پروجیکٹس کی ٹائم لائن طلب۔ دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی مہیا کرنے کا فیصلہ۔ دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسیں فنکشنل کرنے۔ ڈپٹی کمشنرز کو الیکٹرو بس چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب بھر کے 25 اضلاع میں 31 دسمبر تک واسا کے قیام کا ہدف مقرر۔ پنک سالٹ کے پرانے کانٹریکٹ منسوخ اور ری آکشن سے ریونیو میں 5 گنا اضافہ۔ امریکہ، یورپ، متحدہ عرب امارات میں پنک سالٹ کی مارکیٹنگ کا فیصلہ۔ PIA نے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ 25 اکتوبر سے آغاز ہوگا۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے 2 پروازیں ہفتے اور منگل کو آپریٹ کریں گی۔
8 घंटों में बराह रास्त मंजिल तक रसाई। इस्लामाबाद से परवाज दोपहर 12 बजे, मैनचेस्टर से वापसी शाम 7 बजे होगी। दूसरे मरहले में लंदन रूट की शुरुआत। मैनचेस्टर परवासों में बतदरीज इजाफा होगा। PIA का मौजूद किराया, आरामदेह सफर और मुकम्मल सहूलियात की फराहमी का असम। SIFC की ताउन से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी के मौक़े में इजाफा। वज़ीर तिजारत से आसियान ममालिक के सफ़ीरों की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने नई तिजारती पॉलिसी और टैरिफ इस्लाहात पेश कर दी। पाकिस्तान वस्ती एशिया का गेटवे बनकर आसियान के साथ नए तिजारती मौक़े फराहम करेगा। वज़ीर तिजारत DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का किनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा। असातिज़ा और तालिबात का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर तालिबात से इंटरैक्टिव सेशन। सिक्योरिटी और सोशल मीडिया पर गुफ्तगू। ताल्लुकात आमा, कौमी दिफा और जदीद चैलेंजेस पर तालिबात के सवालात के तफसीलन जवाबात। सेशन में किनेट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तलबा ने शानदार नगमा पेश किया। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे एहतमाम पेशावर में ग्रैंड खैबर जरगे का इनेकाद। IGFC नॉर्थ, सिविल इंतजामिया और मुअज़्ज़ज़ क़बायली अमायदीन की शिरकत। ज़िला खैबर की मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। क़बायली अमायदीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करीबी ताउन की यकीन दहानी। कौमी यकजहती और बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मकामी नुमाइंदों ने अवामी मसाइल उजागर किए और उनके हल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। पंजाब में 3 दरियाओं ने सैलाब के बायस तबाही मचाई। दरियाओं की सूरत हाल अब नॉर्मल है। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में शाहराहों की बहाली तेजी से जारी है। मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सैलाब से होने वाले नुकसानात का इजाला करने के लिए कोशां हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के। DG PTM इरफान अली काठिया की लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग। गवादर में पानी का बहरान, पानी की किल्लत पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया की हिकमत अमली कामयाब। शादी कोर पाइपलाइन से यौमिया 12 लाख गैलन पानी की फराहमी बहाल। डिसैलिनेशन प्लांट जुज़ी तौर पर फ़ाल। मीरानी डैम से वाटर बाउजर के जरिए पानी की मुंतकली की मंजूरी। गवादर के लिए यौमिया 24 लाख और जिवानी के लिए 5 लाख गैलन पानी का हदफ मुकर्रर। बीजेपी सरकार के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के मजहबी मकामात गैर महफूज। मोदी की हिंदुत्व हुकूमत का मुसलमानों की शिनाख्त, मजहबी रवायात और मजहबी आज़ादी पर एक और बार। मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जारी। उत्तर प्रदेश के जिला सुंभल के राय बुजुर्ग गाँव में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पिछले 4 माह में जिला सुंभल में मस्जिद शहीद करने का ये दूसरा वाक़या है। मस्जिद तकरीबन 10 साल पहले तामीर की गई थी। दी टेलीग्राफ। शिमाल मशरकी बहरा अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील। तूफान का नाम साइक्लोन शक्ति रखा गया। सिंध भर में शदीद तूफानी बारिशों और तेज़ हवाओं का अलर्ट जारी। समुद्री तूफान के बायस कोंडमलीर के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू। समुद्री हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँचने का खदशा। 6 अक्टूबर तक तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप, आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में होंगी मद्दे मुकाबिल। मैच दिन 2:30 बजे CPTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने होंगे। गुवाहाटी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप चौथा मैच इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका 20.4 ओवर्स में 69 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड ने हदफ 14.1 ओवर्स में बगैर नुकसान के हासिल किया। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अपना घर संभालने नहीं होता, दूसरों में खामियां ढूंढने और अपनी बर्तरी साबित करने का जुनून। मोदी का भारत दुनिया का अनोखा मेजबान। एक जानिब पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए आए कोचेस को आवारा कुत्तों ने काट लिया, तो दूसरी जानिब खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेहमान खिलाड़ी सफाई सुथराई न होने पर खुद ही झाड़ू थामे नजर आए।
इंग्लिश खातून क्रिकेटर्स दिल्ली की गलियों में सैर के लिए निकली तो गंदगी से तंग आकर खुद ही सफाई करने लगी। मेजबानी के ऐसे निराले अंदाज शायद ही दुनिया में कहीं और देखे जाएं। बीजिंग में WTA 1000 चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका की जेसिका पेगोला और जमहूरिया चेक की लिंडा नेस्कोवा भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। जेसिका पेगोला ने हमवतन एमानारोआ को 3 सेट्स में शिकस्त दी। लिंडा नेस्कोवा ने बर्तानिया के सोने कार्टल को स्ट्रेट सेट्स में हराया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का शंघाई मास्टर्स टेनिस में फातेहाना आगाज। रिकॉर्ड 5वें शंघाई मास्टर्स टाइटल के लिए तीसरे मरहले में पहुंच गए। अमेरिका के टेलर फोर्टिस और बेल्जियम के जीजो बर्जिस भी अपने मैचेस में फाते रहे। बेल्जियम ही के डेविड गॉफन ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हरा दिया। जकार्ता इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप दूसरा दिन थाईलैंड के प्यूट तेलंगा का मॉलप्रासर्ट को बर्तरी हासिल। मॉलप्रासर्ट ने दूसरे राउंड में एक शॉट की बर्तरी ली। पहले रोज के लीडर थाईलैंड ही के सौतिपित प्रातिपटियन चाय ने 6ठे नंबर पर रहे। यूरोप के मशहूर सयाहती मकाम आईफल टावर पर दिलचस्प और हैरत अंगेज कारनामा। जमीन पर पांव टिकाए बगैर साइकिल के जरिए सीढ़ियां चढ़ने का रिकॉर्ड। फ्रांस के ऑर्लेन फोंटेनाय ने साइकिल पर दूसरी मंजिल तक 686 सीढ़ियां चढ़ी। फोंटेनाय ने सीढ़ियां सिर्फ 12 मिनट और 30 सेकंड्स में तय की। और स्लोवेनिया के डोमिन स्कोफिक का गैर मामूली और मुनफरिद चैलेंज। उड़ते हुए हवाई जहाज़ के परों पर क्लाइंबिंग करने वाले पहले इंसान बन गए। स्कोफिक ने उड़ते जहाज़ों के परों के नीचे बनाए गए खुसूसी रास्ते को सर करके अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया। हैरान कुन स्टंट में कशिश शकल और 100 किलोमीटर फी घंटा से चलती हवा का भी मुकाबला करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। कश्मीर जॉइंट कमेटी के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मुआहदे पर दस्तखत के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि दुश्मन खुसूसन भारत की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि कश्मीर में खून रेजी हो। मुज़ाकरात का कामयाब नतीजा इस बात का सबूत है कि इत्तेहाद, तहम्मुल और बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ने मुज़ाकरात की कामयाबी में फ़रीक़ैन के मुस्बत किरदार को सराहा। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान। वज़ीर-ए-आज़म अहमद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़फ़्फ़राबाद जाने वाली खुसूसी कमेटी ने तवील मुज़ाकरात के बाद अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। इस बात का ऐलान मुज़ाकराती कमेटी के अरकान राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, राजा परवेज़ अशरफ और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामला खुशउस्लूबी से तय पा गया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वफाक के दरमियान मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई है जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। और जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के आवाम की तालीम का तल्लक है, उनकी सेहत की सहूलतों का तल्लक है, उनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का तल्लक है, तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई कसर उठा नहीं रखेगी और उसके लिए जो है वो जो भी फंड्स मतलूब हुए वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो दिए जाएंगे ताकि आज़ाद कश्मीर जो है वो खुशहाल हो, वो तरक्की करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद दिखाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। हमारे आपस में ना सिर्फ खूनी रिश्ते हैं बल्कि मोहब्बत के रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं और उनको कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हम में से हर शख्स जो है वो यहाँ पर सुकून के लिए, अमन के लिए,
एक अच्छे माहौल के लिए काम करें। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मामला खुशउस्लूबी से तय पा गया है और दुश्मन अपने अज़ाइम में बुरी तरह नाकाम हुआ। जब हम दोनों का मकसद देखो कि कश्मीरी अवाम की वेलफेयर के लिए काम करे, जो कमेटी बनाई गई है इस मकसद के लिए कि जो बातें हम आज हुई है उन पर अमल दरामल यकीनी बनाने के लिए। अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का कहना था कि हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला था और किसी दूसरे मुल्क को अपने मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। एक इत्तफाक राय से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पे लोगों की ख्वाहिशात का भी हमने जिस हद तक मुमकिन था वो उसके असूल के लिए सिर्फ हमारी जदोजहद थी कि ये हमारा अपना अंदरूनी मामला था, इसके अंदर किसी मुल्क को मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर जानते हैं कि हम अपने मसाइल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमती मुज़ाकरात की कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान माहदे का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने इसे पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुश आइंद है। साजिशें और अफवाहें बिल आखिर दम तोड़ गईं और तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय हुए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की कामयाबी पर जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान का भी शुक्रिया अदा किया और अमन के क़याम पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हम वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि हम पहले भी कश्मीरी भाइयों के हकूक के मुहाफ़िज़ थे और आइंदा भी उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के मसाइल पर हमेशा तवज्जो दी है और मेरी हुकूमत ने तरजीही बुनियादों पर उनके मसाइल को हल किया है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम आज़ादाना तौर पर शहरी और सियासी हुकूक का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अवाम की इज़्ज़त व वक़ार, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहाली के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अज़्म न सिर्फ हमारी आइनी बल्कि जम्मू और कश्मीर के अवाम के हवाले से अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हमारे बहन भाई संगीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जारहियत, ताकत का इस्तेमाल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ मासूम शहरियों के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का निशान है। तर्जुमान ने कहा कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर पर बात करने की बजाय भारत आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के हुकूमती इक़दामात पर एतमाद का अक्कास है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में निजी शोबे का किरदार कलीदी हो। उन्होंने मुतालिका वज़ारतों और इदारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शफ़ाफ़ियत, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुआशी पॉलिसियों की तश्कील के ज़रिए पाकिस्तान को ख़ित्ते में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मरकज़ बनाया जाए। हुकूमत अवामी फ़लाह और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के तमाम मौक़े बरूए कार लाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। इजलास में मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त सरमायाकारी के माहौल और जारी तरक्याती मनसूबों का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन मंसूबे की डेडलाइन के बाद हमास ने अपना जवाब सालिसों को जमा करा दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने अपने जवाब में तमाम इस्राइली यरगमालियों की रिहाई और गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर इत्तेफाक किया है। फ़लस्तीनी तंजीम ने मंसूबे के मुतअद्दिद अहम निकात भी तस्लीम कर लिए हैं। हमास के मुताबिक अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात के बगैर अमल दरामद मुमकिन नहीं और 72 घंटे में तमाम मग़वियों की रिहाई गैर मनतकी है। हमास के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने अल जज़ीरा को खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि गजा से इस्राइली कब्जे के खात्मे तक हमास हथियार नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि गजा के मुस्तक़बिल से मुतालिक मसाइल पर जामे फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के अंदर तबादला ख्याल किया जाना चाहिए जिसका हमास भी हिस्सा हो। हमास रहनुमा ने मज़ीद कहा कि हमास ग्रुप और इसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात होंगे। अमन मंसूबे पर हमास के जवाब के बाद ट्रंप ने इसराइल से गजा में हमले रोकने का मुतालबा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में गजा पर हमले करना इंतहाई ख़तरनाक है। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमास के बयान पर मेरा यकीन है कि वो देरपा अमन के लिए तैयार हैं। उनका कहना आज एक बड़ा और तारीख़ी दिन है जिसके नताइज जल्द सामने आएंगे।
ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और दीगर कई ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाने में मदद की। उन्होंने कहा कि हम अमन के क़याम के इंतहाई करीब हैं, हमें इस मुआहदे को आखिरी शक्ल देनी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि हम गज़ा में जंग बंदी के इस कदर करीब हैं जितने इस नस्लकुशी के आगाज़ के बाद कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। सदर ट्रंप के साथ कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादतों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें इजलास के मौके पर सदर ट्रंप से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास के जारी करदा बयान ने जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए एक नया मौका फराहम किया है। ऐसा मौका हमें दोबारा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में देरपा अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। कतर और मिस्र समेत कई ममालिक ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमास के बयान का खैर मक़दम किया है। कतर का कहना है कि गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ राबता शुरू कर दिया है। कतर की वजारत ख़ारजा के मुताबिक वो हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी ज़ाहिर करने के फैसले का खैर मक़दम करते हैं। तर्जुमान ने बताया कि वह सदर ट्रंप के फौरी जंगबंदी के मुतालबे की भी हिमायत करते हैं ताकि गजा में खून रेज़ी का खात्मा और यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़े है। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के हर फोरम पर अपने निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाते रहेंगे। 8 इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा। पाकिस्तान सन 1967 से कबल की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अल-कुद्स शरीफ को बतौर उसके दारुल खिलाफा बनाने का हामी है। फ़लस्तीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मक़दम किया है। फ़लस्तीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान टीवी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। ब्रदर ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले स्ट्रेटजिक शराकतदारी मुआहदे पर फ़ख्र है और इस पेशरफ्त से इसराइल कमज़ोर होगा। इसराइली बहरिया की जानिब से समूद फ्लोटेला पर हमले और कारकुनों को हिरासत में लिए जाने पर दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की और यूनान समेत दीगर मुल्कों में भी फ़लस्तीन के हामी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इटली के दारुल हुकूमत रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहरा बंद कर दी। स्पेन के 35 शहरों समेत ब्रुसेल्स, बर्लिन और ब्यूनस आयर्स में भी बड़ी रैलियाँ निकाली गईं। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इजरायली कौंसल खाने के बाहर नारेबाजी की। अमरीकी सदर के मुजावजा अमन मंसूबे के बावजूद गजा पर इजरायली जहरियत जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 227 ज़ख्मी हो गए। शहदा में बच्चों और ख़ातीन समेत इमदाद के मुंतज़िर 15 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 66,225 हो गई है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में 2022 के सैलाब के बाद डोनर्स की जानिब से इमदाद के वादों के हवाले से जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने जारी काविशों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए पेशरफ्त की मॉनिटरिंग के लिए दोबारा इजलास बुलाने का फैसला किया। इजलास में वज़ीर क़ौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक, वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली, इकनॉमिक अफेयर्स के वफ़ाक़ी वज़ीर, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, मुशीर निजकारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। और पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक की तामीर का मंसूबा 13 साल से ज़ेर इल्तिवा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नए ब्लॉक की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया गया है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने पार्लियामेंट लॉजेस की ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा करके तामीराती काम का मुआयना किया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नए ब्लॉक को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि 13 साल से इल्तवा का शिकार पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दी गई है। मंसूबे के तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया और इसे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें 8 बड़े महकमों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज मुआलजा किया गया। फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद सांप के कांटे की वैक्सीन लगाने से तमाम जानें बच गईं। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब ने सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम करके दूसरे सूबों पर सबकत ले ली है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने पायलट प्रोजेक्ट में 32,000 घरों का डेटा हासिल कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिसंबर तक पंजाब में इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने और डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशंस कायम करने के लिए इक़दाम की हिदायत की है। इजलास ने पंजाब भर के लिए इलेक्ट्रिक बस स्टाफ के यूनिफॉर्म डिज़ाइन की मंजूरी भी दे दी है। मरियम नवाज ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन तलब कर ली और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 472 देहात में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट अक्टूबर तक शुरू करने की हिदायत जारी की। और PIA ने अपने बरतानवी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। कौमी एयरलाइन के बरतानवी ऑपरेशन का आगाज़ 25 अक्टूबर से होगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज़ 12 बजे रवाना होगी और शाम 5 बजे मानचेस्टर पहुंचेगी, जबकि मानचेस्टर से परवाज़ शाम 7 बजे रवाना होकर सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। मानचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा और दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक अब हम वतन 15 घंटे की मुसाफत की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 5 साल बाद PIA दोबारा से ये रूट शुरू करने पर बहुत पुरजोश है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और आसियान ममालिक के सफ़ीरों की वजारत तिजारत इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। SIFC के मुआवनत से पाकिस्तान ने नई तिजारती पॉलिसी और टैरिफ इस्लाहात पेश की। आसियान कंपनियों को पाकिस्तान की जानिब से CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के मुताबिक पाकिस्तान वस्ती एशिया का गेटवे बनकर आसियान के साथ नए तिजारती मौक़े फराहम करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ज़रिए वैल्यू एडिशन से पाकिस्तान में नए तिजारती मौक़े मुतवक्के होंगे। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में वसीतर सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ हासिल होगा। DGISPR ने किनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा किया और फैकल्टी अरकान और तालिबात से गुफ्तगू की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तालिबात और फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू में पाक फ़ौज के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की और सिक्योरिटी मसाइल, सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब में बसारत से महरूम तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। फैकल्टी और तालिबात ने DGISPR की आमद को खुशाइंद करार दिया। We have not only silently prayed for our Bahadur Jawan, we have actively supported and celebrated them. Now something about Marka-e-Haq. I think it was very appropriately named. It was a battle of truthfulness. बहुत सी realities हैं that they are fighting on a daily basis or as such we don't get to know about them. So him coming here was a major game changer because it allowed all of the students to come together and ask him questions, and the interactive session basically built up a lot of energy, a lot of patriotic feeling. इतना ज़्यादा टाइम दिया, एक एक क्वेश्चन को elaboratively और डिटेल्ड तरीके से जो है आंसर किया है. In today's session with DG Saab, which was really wonderful, we are highly privileged
privileged that at Kinnaid we had a very wonderful session with him. He cleared various perspectives. For example, social media के falsify जो news आती हैं उनके regarding बहुत ज़्यादा हमें misinformations मिलती हैं जिसकी वजह से DGISPR ने हमारा बहुत ज़्यादा clarity की. We really hope कि इस तरह के जो interactive sessions हैं वो continue रहें ताकि जो एक gap है between the youth and different institutions of our country उस gap को वो fulfill कर सके अच्छे तरीके से. Because being a political science student, हमारे में ये होता है कि हम we actually study the misinformation and disinformation कि क्या social media पे क्या narratives build होते हैं और जिस तरह India was telling कि Pakistan's army is not doing anything या they are not retaliating या वो उस तरह से उनको जवाब नहीं दे रहे हैं तो on 10th में जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया वो सारी दुनिया ने देखा था. डीजी पीटीएम इरफान अली काठिया ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासरा 27 अजला में 2213 सर्वे टीमें अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं. जॉइंट सर्वे टीम में पाकिस्तान आर्मी और ज़िले इंतजामिया समेत मुख्तलिफ महकमों के 11,500 अफराद शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डैशबोर्ड की रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी है और 69 तहसीलों में 27 अक्टूबर तक सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा. तमाम तहसीलों में बैंक ऑफ पंजाब के बूथ कायम किए जाएंगे जहां सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है. DG PDMA ने बताया कि सैलाब मुतासरीन को ATM कार्ड मिलने के बाद 50,000 फौरी तौर पर निकलवाया जा सकेगा. पाक फौज और ज़िले इंतजामिया के मुश्तरका हिकमत अमली से गवादर में पानी के बहरान का मसला हल हो गया. अकरा और स्वाद डैम खुश्क होने से गवादर और जीवानी में पानी की शदीद किल्लत का सामना था. इस दौरान शादीकोट डैम पाइपलाइन से पानी चोरी और गवादर साफ पानी का प्लांट गैर फाल होने से बहरान मजीद संगीन हो गया. 29 सितंबर को गवादर में पाक फौज और ज़िले इंतजामिया का हंगामी इजलास हुआ जिसमें गवादर के लिए योमिया 24 लाख गैलन और जीवानी के लिए योमिया 5 लाख गैलन पानी का हदफ मुकर्रर किया गया. इजलास में शादीकोट पाइपलाइन से बहाव में इजाफा और गवादर डिसैलिनेशन प्लांट बहाल करने का फैसला हुआ. इस दौरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मीरानी डैम से पानी को बाउजर के जरिए मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी. मुश्तरका कोशिशों से अब शादीकोट पाइपलाइन से योमिया 12 लाख गैलन पानी फराहम किया जा रहा है. साफ पानी के प्लांट भी जुज़वी तौर पर बहाल कर लिया गया है. गवादर और जीवानी की आवाम ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया का पानी का बहरान हल करने पर शुक्रिया अदा किया है. फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर तमाम पेशावर में ग्रैंड खैबर जरगे का इनेकाद किया गया. IGFC नॉर्थ, सिविल इंतजामिया और मुअज़्ज़ज़ क़बायली अमायदीन ने शिरकत की. जरगे में ज़िला खैबर की मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया. क़बायली अमायदीन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करीबी ताउन की यकीन दहानी कराई. कौमी यकजहती और बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया. मकामी नुमाइंदों ने अवामी मसाइल उजागर किए और उनके हल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया. क़बायली अमायदीन ने अमन के क़याम में फोर्सेस के किरदार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया. क़ला बाला हसार का ये इज्तिमाई जरगा क़बायली अवाम और फोर्सेस के दरमियान एतमाद की नई मिसाल बन गया. जरगे का इख्तिताम कौमी इत्तेहाद और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हौसला अफजा पैगाम के साथ हुआ. सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की. मुलाकात में कराची और हैदराबाद के लिए वफाकी तरक्याती फंड्स पर तफसीली बातचीत हुई. मुलाकात के दौरान वसीम अख्तर ने वफाकी फंड से सूबे में जारी तरक्याती कामों के रुकने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और गवर्नर सिंध से दरख्वास्त की कि वो इस मामले पर सदर और वज़ीर आज़म से बात करेंगे. गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने वफाकी तरक्याती फंड्स के हवाले से सदर और वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी करवाई. बीजेपी सरकार के दौरे हुकूमत में मुसलमानों के मजहबी मकामात गैर महफूज हैं. मोदी की हिंदुत्व हुकूमत का मुसलमानों की शिनाख्त, मजहबी रवायात और मजहबी आज़ादी पर एक और वार. मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जारी हैं. भारतीय जरीदे द टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के राय बुजुर्ग गांव में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया गया और पिछले 4 माह में ज़िला संभल में मस्जिद शहीद करने का ये दूसरा वाक़या है. मस्जिद तकरीबन 10 साल पहले तामीर की गई थी. उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल की इंतज़ामिया ने तजावुज़ात का इल्ज़ाम लगाकर मस्जिद को गिराया. मस्जिद को फौजी दस्ते और भारी पुलिस की नफरी की निगरानी में गिराया गया. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद को गिराने का इशारा देते हुए कहा था कि राम मंदिर की तामीर के बाद ज़िला अयोध्या तरक्की और रूहानियत से आगे बढ़ रहा है. ज़िला संभल को भी
کاشی اور ایودھیا شہر کی طرح بنایا جائے گا۔ یوگی آدتیہ ناتھ RSS کے نظریے کو تحت گجرات کے قتل عام کو پھر دہرانا چاہتا ہے۔ مودی سرکار میں ہندوتوا انتہا پسندوں کا مساجد گرانا مودی کی متعصبانہ پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ مسلم شناخت مٹانے کی سرکاری کوشش بھارتی سیکولرزم کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ تربت میں جاری 3 روزہ کلچرل فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے کے آخری روز 25,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اس فیسٹیول میں عوامی شمولیت، ثقافتی جوش و خروش اور تنظیمی معیار کے لحاظ سے ایک نئی تاریخ رقم کی گئی۔ فیسٹیول میں 54 لاکھ روپے کی کتابیں اور 26 لاکھ روپے کی دیگر اشیاء فروخت ہوئیں، جو کیچ کی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کیچ بشیر احمد بڑیچ نے اسے عوام کی امن پسندی، مہمان نوازی اور حب الوطنی کا عکاس قرار دیا۔ اور پر ماحولیاتی آلودگی کے خلاف پنجاب حکومت نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس وقت PTV نیوز کے نمائندہ وردہ سلیم پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات کنول لیاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں پنجاب میں ماحولیات کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بتائیں گے۔ جی وردہ، آگاہ کیجیے۔ ماحولیاتی آلودگی ایک ایسا مسئلہ ہے جو دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، نالوں میں بہتا ہوا فضلہ، یہ تمام چیزیں فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ CM پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پہلی سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح میں شامل ہوگا، اور انہوں نے صرف کہا نہیں، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ اور اسپیشلی یہاں میں ضرور ذکر کروں گی محترمہ منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کا، کہ جن کا یہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے لیا اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، کیونکہ ان کی اپنی اسٹڈی بھی اس کے اوپر تھی۔ ہم ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہم ملٹی سیکٹورل کام کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پنجاب میں، بلکہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پنجاب نے لیڈ کیا اور گرین سرٹیفکیشن کی طرف ہم گئے۔ ہم نے وہیکل امیشن کی سرٹیفکیشن کی طرف گئے، اور اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ ہم نے گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹس اور گرین سٹیکرز جاری کیے۔ تو اسی طرح بہت سارا کام جو ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے۔ جدید جو گنز آئی ہیں اسموک کے خاتمے کے حوالے سے، جو اس حوالے سے بتائیے۔ ہاں جی بالکل، یہ پنجاب کے لیے ایک تحفہ ہے جی۔ جب CM پنجاب نے وزٹ کیا چائنا کا، اور جو کچھ وہاں سے انہوں نے دیکھا اور جو بہترین چیزوں کا انتخاب پنجاب کے لیے کیا، تو میں مبارکباد دیتی ہوں CM پنجاب کو، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور تمام شہریوں کو، کہ جن کی زندگی کے ایک بہت بڑے جو ایک فیکٹس بن چکا ہے، اسموک ایک فیکٹ بن چکا ہے جو فضائی آلودگی، اس کے خاتمے کے لیے آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ ایز اے پائلٹ، اور پھر پورا پنجاب میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری جو واٹر کینن گنز ہیں وہ جو ہے وہ تقریباً 300 سے 500 جو فٹ ریڈیٹ تک جو ہے وہ انوائرمنٹ کو کلین کرتی ہیں۔ تو میرا ماحول میری ذمہ داری بھی ہونا چاہیے۔ شکریہ وردہ سلیم آپ کا۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ منڈی بہاؤالدین میں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مقررین نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے اور رضاکاروں کی گرفتاری کو سمندری دہشت گردی قرار دیا۔ اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ اور اقوام متحدہ سے اسرائیلی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹر افسر راٹھور، ایک ایسا نام جو امن، سلامتی، غربت کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے عالمی مشن کی علامت ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہے جو دنیا اور خصوصاً پاکستان کو ایک بہتر اور پرامن جگہ بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ آئیے اسی بارے میں دیکھتے ہیں سعید وزیر کی یہ رپورٹ۔ عالمی سطح پر امن، ہم آہنگی اور ترقی کا استعارہ ڈاکٹر افسر راٹھور، جس نے تعلیم، صحت، امن، غربت کے خاتمے، بین المذہبی ہم آہنگی اور سفارتکاری جیسے شعبے میں مقام رکھتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر کام کرنے کی وجہ سے عالمی سطح پر گلوبل سٹیزن بن چکے ہیں۔ قدرتی آفات کے دوران انہوں نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور سولر سسٹم کی تنصیب پر کام کیا، جس نے متاثرہ کمیونٹیز کی بحالی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ Water sanitation, as well as we have provided the solar panels, and so we are also working for the health sector. We have given, for example, the different incubators to different hospitals and clinics in Balochistan, in KPK, in South Punjab,
as well as we have renovated several clinics in Pakistan. And also disaster management. We are also, after the flood, we also provide different kind of assistance to people in that affected area, whether this is rations, whether these are foods, and also we are building to some extent also the houses in after the flood in 2022 in different part of Pakistan. पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार उसने एक मुनफरद अंदाज अपनाते हुए किया। डॉक्टर अफसर राठौर ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का रक्शों में सफ़र किया ताकि दुनिया को पाकिस्तान का मज़बूत, पुरअमन और खूबसूरत चेहरा दिखा सकें। All this European rickshaw driver for 1 week, they have to collect donation of £4,000 minimum. Okay, so from that 1,500 pound we buy the rickshaw, new rickshaws, which we'll then give, and the 2,500 pound additionally we will invest then plus in the community. 28 million children are deprived from education, so we are supporting and we are trying to change the mindset of the people, trying to bring them to the education and providing the facilities and also the platform to go for education. So in that sense we providing a scholarship to the vulnerable community. We are also providing the facility to do technical training, for example. We are trying also, we have built 2 schools in Saingwal, one for disabled and one for blind girls. डॉक्टर अफसर राठौर एक अज़म का नाम है जो दुनिया को पैगाम देता है कि अमन और तरक्की सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि मेहनत से हासिल होने वाली हकीकत है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए जदीद सिमुलेटर मशीन नस्ब की है, जहां 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी फराहम किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे कुलसम बशीर अहमद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO खानेवाल इस्माइल रहमान खाड़ा की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस खानेवाल ने खानेवाल में जदीद खुदकार सिमुलेटर मशीन नस्ब की है, जहां मर्द और खवातीन को खुदकार मशीन पर ड्राइविंग सिखाई जाती है, जिसके जरिए 20 दिन में ड्राइविंग सिखाने के बाद न सिर्फ उनको ट्रेंड किया जाता है बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस का भी इंतजाम किया जाता है। खानेवाल में CM साहिबा पंजाब और IG साहब और RPO मुल्तान और हमारे काइंड DPO साहब, उनकी एफर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह एक सिमुलेटर इधर नस्ब किया गया है। शहरियों को चाहिए कि वो इस जदीद सिमुलेटर पर आएँ और सीखें। यकीनन ये इसमें कोई ज़्यादा फीस, उससे ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाई गई, वही फीस रखी गई है जो इससे पहले थी। तो एक ये कीमती मशीन की मदद से लोग आसानी से यहाँ से ड्राइव सीख सकते हैं और प्रैक्टिकली रोड पर आ सकते हैं। इससे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छा इनोवेटिव है जो ट्रैफिक पुलिस ने और पंजाब हुकूमत ने हमारे लिए किया है। सिमुलेटर मशीन के जरिए न सिर्फ इंसानी कीमती जानों को महफूज बनाया जा सकता है बल्कि ड्राइविंग सिखाने में भी बड़ी वाज़िया आसानी पैदा हो सकती है। कुलसम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। और कायनात के राज जानने की जस्तजू और ज़मीन की हुदूद से आगे बढ़ जाने के आज़म के साथ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। चांद पर पहला कदम, मरीख पर तहकीकाती गाड़ियां और जमीन के गिर्द घूमता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये संग मील इंसान की कायनात की वुसअतों तक रसाई की रोशन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 6 दिसंबर 1999 को 4 से 10 अक्टूबर को आलमी खलाई हफ्ता करार दिया। ये दिन स्पुतनिक 1 की लॉन्च और बैरूनी खलाई मुआहिदे पर दस्तखत की याद में मनाए जाते हैं। इस साल आलमी खलाई हफ्ते का मौजू लिविंग इन स्पेस यानी खला में रिहाइश और वहाँ जिंदगी गुजारने का तस्वुर रखा गया है, ताकि न सिर्फ तहकीकी बल्कि अमली तौर पर खला में रिहाइश के इम्कानात को खोला जा सके। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मकामी इंजीनियर्स की काविशों से पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट तैयार किया गया। पाकसैट MM1 ने मवासलाती सलाहियत बढ़ाई, जबकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कुदरती आफात और माहौलियात की निगरानी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक और डोमेन है इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें हम बेसिकली एस्ट्रोनॉट जो है वो
स्पेस में रहते हुए ही जो आपकी स्पेयर पार्ट्स और टूल्स जो उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इससे ये होता है कि आपने कोई हैवी मटेरियल ग्राउंड से लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपकी जो लॉन्च कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है काफ़ी, और जो आपके लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस हैं वो भी काफ़ी फीजिबल हो जाते हैं। स्पेस रोबोटिक्स है जो कि काफ़ी जो है ना इमर्जिंग फील्ड है विद द इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान ने पहली बार खलाबाजों की तरबियत के लिए चीन के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की है, जो नौजवानों के लिए खला की दुनिया में कदम रखने की नई राहें खोल रहा है। सुपार्को ने एग्रीमेंट साइन किया है इस साल के शुरू में चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के साथ, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट ने ट्रैवल करना है चाइना स्पेस स्टेशन में अगले साल अक्टूबर 2026 में। वी आर कॉन्फिडेंट कि जो हमारा एस्ट्रोनॉट वहाँ पे जाएगा तो ना सिर्फ वो एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, सेकेंडली वहाँ पे कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी वहाँ पे जो परफॉर्म करेगा। आलमी खलाई हफ्ता मनाने का मकसद नौजवानों को साइंसी तहकीक की तरफ माइल करना और इन्हें दिखाना है कि मुस्तकबिल में खला नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। खला के शोबे में होने वाली कामयाबियाँ और रिसर्चेस इस बात का सबूत है कि कायनात के पोशीदा राजों को जानना अब महज ख्वाब नहीं रहा, बल्कि आने वाले कल की हकीकत बन चुका है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद नाजरीन। कभी धूप कभी बादल, इन दिनों शहर कायद का मौसम कुछ ऐसे ही बदला बदला सा है। बहिरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील हो चुका है। हमारी नुमाइंदा नौरीन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नौरीन। जी, शुमाल मशरकी बहिरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील होकर समंदरी तूफ़ान बन चुका है, और इसका नाम जो है वो शक्ति रखा गया है, जो कि श्रीलंका ने तजवीज़ किया है, जिसका मतलब है ताकत। और ये आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और इसका रुख जो है वो शुमाल मगरिब की जानिब है, जबकि कराची के जनूब से ये 360 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात की जानिब से इसकी मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। इसके ज़ेर असर जो है वो कई इलाकों में सिंध के बारिशें मतवक्के हैं, जिसमें बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, कराची डिवीज़न भी उसमें शामिल है। हल्की से तेज़ बारिशें इस दौरान मतवक्के हैं, और इस वक्त जहाँ पर ये तूफ़ान मौजूद है उसके आसपास समंदर में 55 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो तेज़ हवाएं चल रही हैं, और जो समंदरी सतह है वो नाहमवार है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है, और माहीगीरों को ये ताकीद की गई है कि वो खुले समंदर में ना जाएं। और इसके अलावा जो कराची का मौसम है इस वक्त वो कभी धूप है और कभी बादल है। गर्मी की शिद्दत जो है वो कभी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज जाने का इम्कान है, और इस वक्त 11 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया नौरीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में नुकसानात के सर्वे का अमल तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शफाफ सर्वे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ नुमाइंदा PTV न्यूज़ इफ्तारुल हसन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इफ्तिखार, बताइएगा ये सर्वे किस हद तक मुकम्मल हुआ है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के अहकामात पर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जितने भी मुतासरा अजला हैं तमाम में जो है सर्वे तेजी से जारी है। इस पर डिप्टी मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि हम भी गाए बगाए यहाँ पर जाके चेक करते हैं कि कदर शफाफियत से जो है सर्वे किया जा रहा है। और कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है कि फिल फौर जो है ये सर्वे शफाफ को मुकम्मल करके रिपोर्ट मुरतब की जाए, ताकि जो मुतासरीन हैं उनको फिल फौर चेक दिए जाएँ, ताकि वो अपनी बहाली मुकम्मल कर सकें, अपने जो घर हैं, जो उनके मुनज़्ज़म घर हुए हैं या जानवर हैं, वो खरीद सकें। इस हवाले से जलालपुर पीर वाला कल जो है कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने दौरा किया है, और जो सर्वे टीम्स हैं उनमें 5 महकमों को में शामिल किया गया, जिसमें पाक अफवाज भी शामिल है, जिसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी शामिल है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है, एजुकेशन है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, ये मिलकर जो है शफाफ जो है सर्वे वो मुरतब कर रहे हैं, जिसके बाद इन मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चेक तकसीम किया जाएंगे। तो इस सूरत हाल के मुताबिक जनूबी पंजाब के जितने अजला हैं, जहाँ जहाँ मुतासरा इलाके हैं, वहाँ तेजी से जो है वो सर्वे मुकम्मल किया जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि इसी माह के अंत तक जो है सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो है मुतासरीन में
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चेक तकसीम किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखारुल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया चिन्योट की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए शफाफ फ्लड सर्वे जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं चिन्योट से मलिक मोहम्मद अली अपनी इस रिपोर्ट में। मुतासर इलाकों में नुकसानात के शफाफ तखमीने के लिए अर्बन यूनिट की 83 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर टीम में अर्बन यूनिट के नुमाइंदे के साथ साथ पाक फौज, महकमे रेवेन्यू, लाइफ स्टाक और महकमे ज़राअत के अफसरान शामिल हैं ताकि नुकसानात का तखमीना मेरिट पर लगाया जा सके। ये टीमें देहातों में जाकर मकानात, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तफसीली रिकॉर्ड मुरतब कर रही हैं। हमने रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से तय कर लिया है। अब ये बिल्कुल न्यूट्रल और ईमानदारी से तमाम चीज़ों का सर्वे होगा। तमाम डाटा जो है वो डिजिटल होगा, उसकी तस्वीरें बनाई जाएंगी, ID कार्ड की तस्वीरें बनाई जाएंगी और ये तमाम डाटा जो है वो भेजा जाएगा और इसकी बुनियाद पर जो भी हुकूमत ने तय किया है मकानात के हवाले से, फसलों के हवाले से, वो जो पैसे हैं, ये जो कंपनसेशन है वो डायरेक्टली उस बंदे को बैंक ऑफ पंजाब के जरिए मिलेगी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रिपोर्ट को काउंटर चेक करने के बाद हुकूमत पंजाब मुतासिरीन की फौरी बहाली और इमदाद के इकदाम करेगी। चिन्योट में जारी फ्लड सर्वे का मकसद मुतासरा खानदानों को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना है और बेहतर जिंदगी का आगाज मुमकिन बनाना है। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान लाइव न्यूज़, चिन्योट। और बूरेवाला में सैलाब मुतासरा ख़ानदानों को घरों की वापसी के बाद पंजाब हुकूमत और योगा काउंसिल ने 21 लाख रुपए के राशन बैग तकसीम किए हैं। तफसील के लिए नुमाइंदा PTV न्यूज़ मसूद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मसूद। दरियाए सतलुज में पानी की सतह कम होने के बाद बूरेवाला के सैलाब मुतासरीन खानदान आस-पास अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन घरों की बहाली और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान है। बूरेवाला के मुखिर हज़रात ने इमदादी कार्रवाइयों के तहत 300 घरानों को खुश्क राशन तकसीम किया जा चुका है। फराहम किए गए राशन में आटा, दालें, चावल, घी, चाय के अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल हैं। हुकूमती इदारों के साथ साथ मुखिर हज़रात भी आगे हैं सैलाब ज़दगान में। तो पाकिस्तान योगा काउंसिल बूरेवाला ने इस दफ़ा 21 लाख रुपए इकट्ठे किए। तकरीबन 300 घरानों को एक माह का राशन दिया जा रहा है। लोग अब घरों में वापस जा रहे हैं और उनकी मुश्किलात में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को ये तकरीबन कोई 6-7 लोगों के लिए 1 महीने का राशन ये हम दे रहे हैं। मुतासरीन में राशन की तकसीम इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल है। वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। मसूद आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बूरेवाला। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, खवातीन क्रिकेट आलमी कप में आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक एक मैच खेल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका को भारत के हाथों 59 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के चौथे मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हराया। गुवाहाटी में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम इंग्लिश बॉलर्स का सामना न कर सकी और 20.4 ओवर्स में सिर्फ 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका की 10 बैटर्स डबल फिगर तक न पहुंच पाई। सनालो जैफिया 22 रन के साथ नुमाया रहीं। इंग्लैंड की जानिब से लिंडसे स्मिथ ने 3 विकेटें हासिल की। नेट स्कायोर, सोफी इग्लस्टोन और चार्ली डेन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। जवाब में इंग्लैंड ने 70 रन का हदफ 14.1 ओवर्स में बगैर नुकसान के हासिल कर लिया। एमी जॉन्स 40 और टेमी ब्यूमंट 21 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। लिंडसे स्मिथ को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। Some things that South Africa would hope.
through in the outfield. नाज़रीन, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खवातीन टीम अपना दूसरा मैच कल भारत के खिलाफ खेलेगी। मैच प्रेमादासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम आज शाम कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खवातीन खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगी। अपना घर संभालने नहीं होता और हर वक्त दूसरों में खामियां ढूंढने और अपनी बर्तरी साबित करने का भारतीय जुनून। एक तरफ पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कोचेस को आवारा कुत्तों ने काट लिया, तो दूसरी जानिब खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेहमान खिलाड़ी सफाई सुथराई न होने पर खुद ही झाड़ू थामे नजर आईं। मेजबान के ऐसे निराले अंदाज शायद ही दुनिया में कहीं और नजर आए। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलों के बजाय आवारा कुत्तों का राज कायम हो गया है। भारत में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान अलग अलग वाकयात में आवारा कुत्तों ने 2 कोचेस पर हमला कर दिया। कीनिया के कोच डेनिस मेवांजो और जापान के असिस्टेंट कोच मैको ओतोमास्तो कुत्तों के हमले और कांटे से जख्मी हो गए। चैंपियनशिप के आगाज से अब तक कुत्ते के हमलों का 5वां वाकया है। इससे कबल सिक्योरिटी गार्ड और भारतीय शहरी भी कुत्तों के हमलों का निशाना बन चुके हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड की खवातीन क्रिकेटर्स जब दिल्ली की गलियों में सैर को निकली तो शहर की आलूदा गलियों ने उनका ऐसा इस्तकबाल किया कि वो खुद सफाई करने पर मजबूर हो गईं। नाज़रीन, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान नेवी और माड़ी एनर्जीज के दरमियान खेला जाएगा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी होंगे। लाहौर में खेले जा रहे इवेंट की सेमीफाइनल में पाकिस्तान नेवी ने एयर फोर्स को यकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 से हराया। हनान शाहिद ने 2, वलीद और वसीम ने 1-1 गोल किया। दूसरे सेमीफाइनल में माड़ी एनर्जीज ने कस्टम्स की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनाल्टी शूट आउट में मात दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पेनाल्टी शूट आउट में माड़ी एनर्जीज ने 4 जबकि कस्टम्स ने 3 गोल किए। अमेरिका की जेसिका पेगोला और जमहूरिया चेक की लिंडा नस्कोवा चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। बीजिंग में खेले जा रहे WTA 1000 चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में जेसिका पेगोला ने हम वतन ईमा नवारो को 3 सेट्स में शिकस्त दी। पेगोला ने नवारो को 6-7, 6-2 और 6-1 से जेर किया। लास्ट 4 में जेसिका पेगोला का मुकाबला जमहूरिया चेक की लिंडा नोस्कोवा से होगा। लिंडा नोस्कोवा ने बरतानिया की सोने कार्टल को स्ट्रेट सेट्स में हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। नोस्कोवा ने कार्टल को 6-3 और 6-4 से मात दी। नाज़रीन, खेल का हवाला आपने जाना, आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहेंगे इजाज़त। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़। हर वक्त बार वक्त